आप प्लीज एक मिनट महेश साहब को। जी जी महेश। थैंक यू सो मच स्पीकर साहब। टुडे ट्रूली इज़ अ हिस्टोरिक डे और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि 78 साल के बाद कल 3 अक़लियती ग्रुप मार्च कर रहे थे अपने राइट्स के लिए, जो कि आज हम रेजोल्यूशन में वही डिमांड्स रख रहे हैं जिसके लिए वो कल सड़कों पे खड़े हुए थे। 3 में से एक अक़लियती ग्रुप एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था जो उन दोनों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा था। ये भी एक डेमोक्रेसी का हुस्न है कि 3 डिफरेंट डिमांड्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक ही जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आज कोई भी परफॉर्मेंस की बात नहीं करूँगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं आज की अपनी स्पीच डेडिकेट करूँगा उन सारे अनसंग हीरोज़ की तरफ जो फेथ बेस्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो तारीख़ के पन्नों में कहीं उन पे गर्द जमी हुई है और हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमारे सिलेबस से उनको हटा दिया जाता है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करूँगा और मैं उनके नाम पढ़ के उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो सर। प्लीज़ सर, प्री इंडिपेंडेंस डे के कुछ नाम हैं। दयाराम गिड्डूमल शाहानी, ही वॉज फर्स्ट ब्यूरोक्रेट फ्रॉम सिंध इन द इंग्लिश एरा। He was a judge, a scholar, poet and education reformer. He was also a co-founder of DJ Science College, जो हमारे पीछे ही इस बिल्डिंग के पीछे ही है। राय बहादुर हरचंद राय विशनदास, also known as father of modern Karachi. He was a lawyer, politician and mayor of Karachi as well. He was the first Hindu mayor of Karachi. He was advocate for education and intercommunal harmony. Sardar Dayal Singh Machidia, he was a Sikh, he was a philanthropist, founder of Punjab National Bank and the Tribune newspaper. Sir Gangaram, he was an engineer, philanthropist, built hospitals, colleges, modern Lahore landmarks like GPO Lahore, Lahore Museum, HSN College, Haley College of Banking and Finance. Seth Harji R. Vishandas, he introduced electricity to Karachi, and that's how the Karachi named as City of Lights. Rao Bahadur Udao Das Tarachand, he was the one who built Shikarpur first modern hospital. Seth Vishandas Nehalchand, he donated schools, libraries and hospitals in Hyderabad. After independence, Jogendra Nath Mandal, he was a Dalit Hindu, Pakistan's first law and labor minister, laid the legal foundation of the new state. Dr. Anand Mohan Sahai, member of Pakistan's first Constituent Assembly, helped frame the first constitution. Jagannath Azad wrote Pakistan's first national anthem at Quaid-e-Azam's request. Chandar Bhan, designer of Pakistan's first currency note, embedding the star and crescent as national symbols. Professor Ramchandra, Pakistan Atomic Energy Commission first Hindu scientist. Some from the National Defense and Sacrifices. Squadron leader Harmit Singh, Suraj Prasad, Arjun Kumar, Group Captain Cecil Chaudhary, he was a decorated hero of 1965 and 71 war. Letteran, educator and right activist. Air Vice Marshal Eric Gordon Hall, he played key role in 1965 war. Pioneer of PAF electronic warfare. Wing Commander Mervyn L. Middlecourt, he was awarded Sitara Jurat twice, Tamgha Difa Sitara Harb twice, Tamgha Jang. Air Commander Nazir Latif, twice awarded Sitare Jurat. Squadron leader Peter Christie, he was B-7 navigator, Sitare Jurat भी उनको मिल चुका है। कुछ पब्लिक सर्विस और गवर्नेंस से रिलेटेड मैं नाम मेंशन करूंगा। पीके शाहानी साहब, he was seasoned parliamentarian, policy maker, signatory to 1973 Constitution as well, as an MNA. वो फिर MPA बने 1977 में, सिंध के मिनिस्टर रहे एग्रीकल्चर के, प्लानिंग डेवलपमेंट के,
He played an important role in MPP and MQM Accord in 1988. Contributed to 1991 Water Accord and was a member of Kashmir Committee representing Pakistan at the UN on issue. In 1983, he co-founded the Human Rights Commission of Pakistan. Mr. MP Mullidhar Gangwani Sahab, first non-Muslim 22 grade officer, Sitara Imtiaz recipient, retired as chairman State Cement Corporation of Pakistan. He founded Al Pakistan Hindu Panchayat and Pakistan Hindu Council as well. He was former president of FEISCA, Federation of Engineering Institute of South and Central Asia. He introduced electronic voting in Pakistan Engineering Council as the chief election officer. M. Sudhamo Lal, he rose through Pakistan tax system. Now he is leading Mauritius Revenue Authority and Global Tax Organization. Dilshad Najmuddin, Christian, first Christian IG of Sindh. He became later ambassador to Philippines as well. Samuel Martin Burki, he was civil servant, diplomat, scholar, and Sitara Imtiaz, Sitara Pakistan recipient. In judiciary, Justice Alvin Robert Cornelius, he was Chief Justice, expanded scope of fundamental rights. Justice Dorab Patel, Supreme Court Judge, co-founder of Human Rights Commission of Pakistan. Justice Rana Bhagwan Das, he was senior Supreme Court Judge and acting Chief Justice. Justice Rustam Sidhwa, Supreme Court Judge, also served on International Criminal Tribunal for Yugoslavia. In science, Abdus Salam, Pakistan's first Nobel recipient, built scientific infrastructure. Dr. Ruth Fowle spent 50 years eradicating leprosy, Mother Teresa of Pakistan. Dina M. Misri, iconic principal of BVS Parsi High School. Professor Ram Chandar, Pakistan first atomic energy, scientist who worked in Energy Commission. In business and philanthropies, A. Kawasji was a Pakistani newspaper columnist, social activist, and philanthropist. Biram D. Awari was a Pakistani hotelier, twice Asian Game gold medalist, owner of Awari Hotels. MP Ismanyar Bhandara Sahab, industrialist and parliamentarian. Anthony Mascarenhas, journalist whose 1971 reporting changed global opinion. F.E. Chaudhary, pioneer photojournalist. सर ये सारे जो नाम मैंने गिने हैं ये कुछ नाम हैं जो मैं टाइम की कमी की वजह से यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि सब लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि ये जो हमने पाकिस्तान की तस्वीर बनाई है उसमें सिर्फ एक रंग नहीं है, उसमें हर हमारी कम्युनिटी का रंग शामिल है, उनका खून शामिल है, उनकी स्ट्रगल शामिल है। This was a tribute from me to all those unsung heroes जिन्होंने इस पाकिस्तान के बनने से पहले और बनने के बाद अपना कंट्रीब्यूशन दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया आज एक हिस्टोरिक सेशन, आपने मेरी रिक्वेस्ट पे इस चीज़ को हेल्प भी किया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी दास साहब आपने बात करनी है, आपकी स्पीच है। जी जी शुक्रिया स्पीकर साहब, स्पीच करेंगे आप? जी जी आपने इस रेजोल्यूशन पे बात करने का मौका दिया। हम इस रेजोल्यूशन की अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। मैं सीएम साहब की स्पीच में से कुछ चीज़ें कोट करूंगा और एक और इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ भी इस ऐवान की तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। सीएम साहब ने कहा कि कायदे आज़म का जो विजन था, जिसकी एक लाइन उन्होंने कोट की कि इस मुल्क में उस वक्त तक हम मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं हैं जब तक हम तमाम रहने वालों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सकें। उसके बाद उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कोट किया और उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सबके लिए बराबर के हुकूक होने चाहिए। स्पीकर साहब ये बातें बहुत अच्छी हैं और हम समझते हैं कि ये वो बातें हैं कि जिस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। हम इन तमाम बातों को सपोर्ट करते हैं, आपकी रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस शहर में एक बहुत बड़ा मसला है जो ह्यूमन राइट्स की बदतरीन वायलेशन है। और मैं अगर कहूं कि वो इन दोनों शख्सियात के विजन की वायलेशन है
सर देखिए, मुझे बात करने दें। ये डंपर के इशू पे हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा सीरियस इशू है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। इस शहर में डंपर जो है वो बेलगाम होके मौत बांटता फिर रहा है। इस शहर के लोग मर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, माओ की गोदें उजड़ रही हैं। इस शहर के लोग जो है बच्चे यतीम हो रहे हैं। हम इस वक्त किसी सियासी बात नहीं कर रहे हैं, ना मजहबी बात कर रहे हैं, ना किसी मसलक की बात कर रहे हैं। कुछ अरसे कबल जो एक पख्तून बहन जो हामला थी, जिनको डंपर ने हिट किया, जिनका बच्चा रोड पे डिलीवर हुआ, वो पख्तून थी। हम उनकी हक की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए मेरे माइनॉरिटी के जो लोग हैं और इस ऐवान में बैठा हुआ कोई मेंबर भी ये नहीं कह सकता कि वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं थी। सर, उससे बड़ी वायलेशन ह्यूमन राइट्स की क्या होगी कि एक बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है, उसको बेलगाम डंपर कुचल देते हैं, उसको इस शहर में कोई कानून नाम की चीज नहीं है। सर, उसके बाद सितम ज़रीफी ये देखिए कि उन्हीं लोगों के साथ निगोशिएशन की जाती है और कल इस हुकूमत के सीनियर वजीर उन डंपर्स जो जले हैं उनके लिए कंपनसेशन का ऐलान करते हैं। हम मानते हैं सर, नहीं जलाने चाहिए डंपर्स, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप माली नुकसान पे कंपनसेशन दे रहे हैं, जानी नुकसान पे कोई कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। आप लोगों ने तो, आपके तो तर्जुमान अगर हम बात करें तो सर जितने बीट रिपोर्टर नहीं है इस शहर में उतने आपकी हुकूमत के तर्जुमान हैं। कोई एक तर्जुमान भी जाके किसी एक शख्स जो शहीद हुआ है, जो इन बेलगाम डंपरों के आगे आके शहीद हुआ है, उसके घर जाके किसी ने ताजियत नहीं की, दो बोल मीठे नहीं बोले। एक शख्स जो माफिया है उससे जाके हुकूमत नेगोशिएट करती है और माली नुकसान को कंपनसेट करती है। हम कहते हैं बिल्कुल माली नुकसान को कंपनसेट करें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है, इस शहर के बच्चे क्या इंसान नहीं है? क्या उन पे ह्यूमन राइट्स की चीजें लागू नहीं होती हैं? वो अपने हुकूक के लिए किसके पास जाएं? सर, हमारे वोटर हैं, हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हिमायत करते हैं आपकी इस रेजोल्यूशन की, हिमायत करते हैं आपकी की हुई सारी बातों की, लेकिन इस बात का जवाब दें, इस बात को हमें ये बताएं कि कैसे। सर, एक सेकंड और लूंगा कि किस तरीके से जो है वो डंपर्स के लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पे एटीसी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, और जो कतल, वो घर से ये सोच के नहीं निकले थे कि डंपर जलाएंगे, जो एक रिएक्शन में उन्होंने जलाया है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। डंपर नहीं जलने चाहिए, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप कातिलों के लिए, सर एक मिनट और लूंगा, आप कातिलों के लिए तो उसूल और रख रहे हैं और जो बेचारे कत्ल हो रहे हैं उनके लिए उसूल और है आपका। एक और बात सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डंपर्स का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बताएं कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने डंपर्स बंद किए। सर एक आखिरी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, एक शख्स वहां पे खड़े होके, सर ये इस ऐवान के लिए बहुत जरूरी है, हम नहीं चाहते इस शहर में, हमने अपनी जानों को खतरे में डाल के इस शहर में अमन कायम किया है, हम नहीं चाहते इसमें लिसानी फसाद हो, इसमें जो है वो उर्दू बोलने वाले पख्तून भाइयों के खिलाफ कोई किसी किस्म का इशू हो। सर, एक शख्स वहां पे बैठ के ये कहता है कि मैं महाजिरों को जला दूंगा। सर, आप आज ऐसी बात ना करें, आज ऐसी बात ना करें। आप बैठ जाएं। एक आखिरी बात सर, मैं मुतालबा करता हूं कि हुकूमत इसको गिरफ्तार करे, उस पर FIR काटे। हमारे बैठ जाएं, आप बैठ जाएं आप ताज साहब, बात हो गई आपकी, पॉइंट आ गया, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं अभी आप बैठ जाएं। ताज साहब आज ऐसी स्पीच ना करें, बैठ जाएं।